Hello everyone, welcome to my channel. We are going to discuss the most important botany MCQs which will help you people in your competitive examinations as well as in entrance tests of universities. Thank you. So let us discuss first of all the MCQs. Our question is the which one of the following is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR. DNA polymerase जो एंजाइम है जो पीसीआर में यूज़ होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो सबसे पहले इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ यूज्ड टू ligate introduced DNA in recipient cell, it serves as a selectable marker. So it remains active at high temperature. This is the correct statement regarding DNA polymerase, while others are incorrect. The next is a nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice field is Frankia, Tolipothrix, Spirulina, Anabina. So नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो राइस और पेडी फील्ड्स में एसोसिएटेड होता है एजोला से, सो इट इज़ एनाबिना द साइनोबैक्टीरिया. ऑप्शन 4 is the right one. Anabina associates with azolla which helps in fixing the nitrogen. A patient brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given. ए पेशेंट जो है एक लाया गया है जिसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो मायोकार्डियल पोर्शन की तरफ फ्लो का कम हो गया है या रुक गया है, उसको इमीडिएटली कौन सी ड्रग या ट्रीटमेंट दी जाएगी। सबसे पहले है साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस. सो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकाइनेस. ये ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हेल्प करता है. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is known as plasmid probe vector selectable marker. Single strand of nucleic acid tagged with radioactive molecule. So it is known as probe. Option 2 is the right one. Probe is the single strand of nucleic acid tagged with radioactive molecule. Which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and helps them in their nutrition? कौन सा माइक्रोब जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स के साथ बनाता है और उनको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है? गिलोमस, ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस. इसका करेक्ट है गिलोमस. इट इज़ अ fungal species and it is associated with plants and help them in their nutrition. Next है yeast is used in the production of. yeast जो है किस चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ होती है? यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ब्रेड एंड बेयर, चीज़ एंड बटर, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, लाइपेस एंड पेक्टिनेस. सो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेड एंड बेयर. ये दोनों बनाने में इसीलिए यीस्ट को बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट एज वेल एज बेकर्स यीस्ट. The highest number of species in the world is represented by algae, lichens, fungi, mosses. Highest number of species. सबसे ज़्यादा किस स्पीशीज़ की या कौन से ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है? सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. फंजाई. फंजाई आर highest number in their species diversity. Which one of the following is a wrong statement? Greenhouse effect is a natural phenomena. Eutrophication is a natural phenomena in freshwater bodies. Most of the forests have been lost in tropical areas. Option 4. Ozone is in the upper part of the atmosphere is harmful to animals. ओजोन जो है वो अपर पार्ट के जो एटमॉस्फेयर में है वो हार्मफुल नहीं है, वो यूज़फुल है. वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से जो सन से रिलीज़ होते हैं. सो ऑप्शन 4 इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. Which one of the following is not a gaseous biomolecule biogeochemical cycle in ecosystem? Gaseous
यहाँ पे बोल रहा है गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन से हम्म, कौन से मीन्स मिनरल की या न्यूट्रिएंट की नहीं है, या गैस की, गैसियस गैसियस फॉर्म नहीं है, गैसियस। सो फास्फोरस बेसिकली इट इज़ रिलीज फ्रॉम रॉक्स। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन। बाकी जो तीनों हैं वो गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में आ जाते हैं इकोसिस्टम में। द अपराइट pyramid ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन लेक, ग्रॉसलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट। Upright pyramid of number. Pyramid of number represents the number of individuals in a particular area. तो ये अपराइट में नहीं है, तो इसका ऑप्शन है फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। सो इसीलिए फॉरेस्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम के क्या, एक तो होता है प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो होती है, डिकम्पोजिशन, ये तीनों होते हैं। सो स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द रॉन्ग आंसर। स्ट्रेटिफिकेशन जो बायोलॉजी में है वो दो तरह के, एक तो ये होता है कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी प्लांट्स, प्लांट कम्युनिटीज़, और दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन जो हम सीड कोड को ब्रेक करने में यूज़ करते हैं। जैसे कॉटन के सीड्स को पहले सॉक किया जाता है पानी में, फिर उसको स्ट्रेटिफाई किया जाता है, किसी भी रफ़ एरिया से उसको रगड़ा जाता है जैसे उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाए और जर्मिनेशन में आसानी हो जाए। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में जो कौन से एरियाज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं, मीन्स ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सो दे आर वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज़ assured इन। पॉलिनेटिंग एजेंट्स भले ना हों फिर भी सीड सेटिंग हो जाती है, सीड्स बन जाते हैं कौन से प्लांट्स में, सेल्विया, फिग, कमेलिना, जोस्ट्रा। सो ऑप्शन 3 इज़ द कमेलिना। दे हैव क्लिस्टोगेमस flowers which do not open, and before their opening are being they are pollinated. So salvia camelina is the right one. Option 3. Both autogamy and geitonogamy are prevented in, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन के जो टाइप्स हैं वो दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं कौन से स्पेशीज़ में, केस्टर, मेज, पपाया, कुकुम्बर। सो ऑप्शन 3 इज़ राइट वन, पपाया। पपाया इज़ द डायोशियस प्लांट जिसके मेल और फीमेल अलग होते हैं, और इसमें ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी बोथ आर प्रिवेंटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, यीस्ट, जूस्पोर्स, ऑनियन, बल्ब, जिंजर, शक्कर। सो ये सारे इनकरेक्ट हैं एक्सेप्ट 3, ऑनियन, बल्ब। ऑनियन जो है उसको बल्ब बोला जाता है, जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है अंडरग्राउंड, इसके लिए स्टेम। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल्स इन फ्लावर्स ऑफ पेपेवर, माइकेलिया, येलो, टोमेटो। Gynoecium consists of many free pistils in the flowers of Michaelia. Option 2 is the right one. The coconut water and the edible part of coconut are equivalent to endosperm. Option 3. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है. So the coconut water as well as its edible part is endosperm. The correct sequence of cell organelles during photorespiration is chloroplast, mitochondria, peroxisome, chloroplast vacuole peroxisome, chloroplast Golgi bodies mitochondria, chloroplast rough endoplasm reticulum dictyosomes. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। अ प्रोसेस दैट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। कौन सा प्रोसेस जो है C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस बनाता है। सो दैट इज़ द ऑप्शन 2, फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, जबकि C4 उसको टोटली अवॉइड करते हैं ड्यू टू डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन। बाकी सारे बोथ में सेम हो सकते हैं
होते हैं। फोटोसिंथेसिस सेम होगा, ट्रांसपिरेशन भी होती है दोनों में, और ग्लाइकोलाइसिस भी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पोटेशियम रेडिली इमोबिलाइजेशन, बकानी ऑफ राइस सीडलिंग्स, एफ स्कूग, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एटीपी, एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एपोप्लास्ट जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं होती, वो सिम्प्लास्ट से होती है। सो ये भी इनकरेक्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर एटीपी, ये भी इनकरेक्ट है। एंड पोटेशियम they are not readily immobilized. So option 2 is the right one. Bacani of rice seedlings was due to the gibberellin, and that was discovered by F. Skoog. Cymose inflorescence is present in Trifolium brassica, Solanum, sesbania. Option 3 is the right one. Solanum. Solanum में Cymose inflorescence होता है. How many plants in the list given below have composite fruits that develop from an inflorescence? Composite fruit: walnut, poppy, radish, fig, pineapple, apple, tomato, mulberry. इनमें से कितने प्लांट्स हैं या कितनी स्पीशीज़ हैं जिनमें कंपोजिट फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस? सो इसमें 3 ऐसे हैं. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. 3. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. 3. इसमें पाइनएप्पल और मलबरी. दूसरा आ जाता है वालनट, पॉपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल. पाइनएप्पल, मलबरी और फिग आएगा आई थिंक. सो फिग का कंफर्म. वालनट, पॉपी, रेडिश, फाइन, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो, मलबरी. पाइनएप्पल और मलबरी तो कंफर्म है. दूसरा सो लेट अस डिस्कस क्या होता है, देखेंगे इसको. Which one of the following is the wrong statement? Phosphorus is a constituent of cell membranes, certain nucleic acids as well as proteins. Nitrosomonas and nitrobacter are chemoautotrophs. ये correct statement है. Anabina and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also. That is also correct statement. Root nodule forming nitrogen fixers live as aerobes under free living conditions. ये भी करेक्ट है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द इनकरेक्ट. फास्फोरस जो है सब प्रोटीन्स का, ऑल प्रोटीन्स का, ये बता रहा है कि ऑल प्रोटीन्स का कंस्टिट्यूएंट है, जबकि कुछ प्रोटीन्स का है कुछ का नहीं है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी सारे करेक्ट हैं. द कॉमन बॉटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फेलोजीन. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. फाइलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ओपनशिया, एस्पेरेगस, यूफोर्बिया. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में जो स्टॉक है, पिटियोल जो है वो विंग लाइक मॉडिफाइड होता है, जिसको फाइलोड बोलते हैं. पिटियोल ऑफ द लीफ. वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली फेबेसी, जिसमें विंग्स, कील और स्टैंडर्ड होते हैं. 5 पेटल्स होते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी फैमिली. कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट्स. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. सीव एलिमेंट्स से कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उसका सारा काम संभालते हैं. प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. एक्साइल. टोमेटो में और लेमन में एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है. क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स लैक कैम्बियम, पिथ, ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन. कैम्बियम. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मेज. मेज में वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं वेस्कुलर बंडल्स में. सो ऑप्शन 4 इज द राइट वन. मेज विच इज अ मोनोकाट एंड दे हैव वाटर कंटेनिंग कैविटीज.
Best defined function of manganese in green plants is nitrogen fixation, water absorption, photolysis of water, Calvin cycle. मैंगनीज जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन. An organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by an enzyme. ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो विदस्टैंड करता है इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स में, चाहे कितना भी मीन्स टेम्परेचर हाई हो, और वो डिग्रेड भी नहीं होता एंजाइम से. सो ऐसा है लिग्निन, सेलुलोज, क्यूटिकल, स्पोरोपोलिनिन. ऑप्शन 4 इज राइट वन, स्पोरोपोलिनिन, जो कि स्पोर्स और पोलन ग्रेन्स के एक्सटर्नल या आउटर सीड कोट में पाया जाता है, जो कि रेजिस्टेंट होता है किसी भी इन्वायरमेंटल और एंजाइम से. इसीलिए 5000 साल पुराने भी स्पोर्स मिल चुके हैं जो कि रेजिस्टेंट हैं. ड्यू टू देयर रेजिस्टेंट कैपेसिटी दे आर इंटैक्ट. सो स्पोरोपोलिनिन इज़ द करेक्ट वन, जिसको एंजाइम्स भी डिग्रेड नहीं कर पाते. Which one of the following is not a part of a transcription unit in DNA? A promoter, structural gene, inducer, a terminator. Not a part of transcription. The inducer. Option 3 is the right one, which is not the part of transcription. Removal of introns and joining of exons in a defined order during transcription is called slicing, splicing, looping, inducing. Splicing is the right one, जिसमें हम कट करते हैं इंट्रॉन्स को और एग्जाम्स को ज्वाइन करते जाते हैं. Evolution of different species in each area starting from a point of and spreading to other geographical areas is known as migration, divergent evolution, adaptive radiation, natural selection. Option 3 is the right one, adaptive radiation. Removal of RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of transfer RNA. Option 3 is the right one. PCR and restriction fragment length polymorphism, reflip, are methods for DNA sequencing, genetic fingerprinting, study of enzymes, genetic transformation. Option 2 is the right one. PCR and reflip both are methods in genetic fingerprinting. Option 2 is the right one. Which one of the following does not differ in Escherichia coli and Chlamydomonas? कौन सी चीज़ सिमिलर है Escherichia coli में और Chlamydomonas एंड Escherichia coli? Escherichia coli बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है, जबकि Chlamydomonas यूकैरियोटिक है. सो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में बोथ में सेम होती है. Option 2 is the right one. During gamete formation, the enzyme recombinase participating during Pectian stage of prophase 1. Option 1 is the right one. Prophase 1 के Pectian stage में अब enzyme recombinase participate करता है. Nuclear membrane is absent in Volvox, Nostoc, Penicillium agaricus. So option 2 is the right one, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन, नॉस्टॉक, विच इज़ अ साइनोबैक्टीरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? एंथ्रेडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स. दैट इज रॉन्ग. इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स. ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स. दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. टेरिडोफाइट गैमिटोफाइट हैज़ अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज. नो, ये भी ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमिटोफाइट इज लिविंग, फ्री लिविंग. नो, इट इज़ नॉन फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग. सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. सीड हैबिट जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है टेरिडोफाइट्स में, जिनमें हेट्रोस्पोरी जन्म लेती है. Which statement is wrong for viruses? They have the ability to synthesize nucleic acids and protein. That is correct. Antibiotics have no effect on them. Also correct.
All are parasite, also correct. So option 4 is the incorrect. All of them have helical symmetry. No, that is incorrect. सबकी शेप्स अलग होती हैं, कोई टेडपोल होते हैं. Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? कौन सी चीज़ इन तीनों में कॉमन है? मल्टीसेलुलर algae में, filamentous algae में, multicellular fungi में, filamentous algae में एंड protonema of mosses means bryophytes. मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, फंजाई हेटरोट्रॉफ होती है जबकि वो दोनों ऑटोट्रॉफ हैं. मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, दैट इज़ द करेक्ट वन. तीनों में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नो. फिलामेंटस एल्गी जो है वो है प्लांटिक लाइफ साइकिल है. एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी नहीं. मल्टीसेलुलर फंजाई किंगडम फंजाई के किंगडम मेंबर्स हैं. सो ऑप्शन 2 इज द राइट वन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया. सो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है, मोनेरा या बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स. इनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है. कोई हेटरोट्रॉफ होते हैं, कोई ऑटोट्रॉफ होते हैं. हेटरोट्रॉफ में फिर केमोट्रॉफ होते हैं कोई. सो इस तरह से इनमें काफ़ी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है. जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड spermatophytes because they lack xylem fibers in their wood. Cycas and Adiantum resemble each other in having. Cycas जिम्नोस्पर्म है, एडियांटम टेरिडोफाइट है. इन दोनों में क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सिमिलरिटी है वो देखेंगे. कैम्बियम, they both have cambium, they both have vessels, they both have seeds, they both have motile sperms. So option 4 is the right one, they both have motile sperms. जबकि सीड्स, वेसल्स एंड कैम्बियम से दोनों रिजेंबल नहीं करते, सिर्फ मोटाइल स्पर्म से वो रिजेंबल करते हैं. दोनों के स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं. थैंक यू.